Hi everyone. In this video we talk about T.H. Morgan and linkage. What is the contribution of Morgan in the field of genetics? Before discussing about the contribution of T.H. Morgan, I want to explain three terms here. First, one is the independent assortment, second one is linkage and third one is recombination. जब हम इन तीन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्लियरली अंडरस्टूड हो जाता है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. What do you mean by independent assortment? This is the law of inheritance given by Mendel. Here is one pair of homologous chromosome. On which gene capital Y and small y is present. This is the another pair of homologous chromosome on which another gene is present, that is capital R and small r. What happened at the time of gamete formation? Allelic pairs gets segregated or separated. जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो एलिलिक पेयर्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं. दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडल which was given when he worked on Pisum sativum. That is the law of segregation or purity of gamete. So what happened in this gamete? Only one chromosome containing capital Y is present, and in the another gamete another chromosome on which small y is present. So alleles are segregated at the time of gamete formation. This is called segregation. Similarly, this is the another pair of homologous chromosome. Here also alleles get segregated, and one of the allele, that is capital R, comes with capital Y in this gamete, and another small r containing chromosome comes in this gamete along with small y. But what we observe here, ये कॉम्बिनेशन तो अराइज होते हैं, बट y की जो इनहेरिटेंस है वो r पर डिपेंड नहीं करती और r की इनहेरिटेंस y पर डिपेंड नहीं करती. दैट्स वाई क्या होता है कि कैपिटल y गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेम गैमेट में कैपिटल r के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, और मे बी कैपिटल y कैपिटल r के साथ ना होकर स्मॉल r के साथ भी हो सकता है. तो न्यू कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैपिटल Y प्रेजेंट है इस गैमेट में और कैपिटल Y के साथ कैपिटल R ना होकर स्मॉल r इस गैमेट के अंदर एंटर कर जाता है. सिमिलरली दूसरे गैमेट में पहले क्या प्रेजेंट था, कैपिटल Y स्मॉल y प्रेजेंट था, अब इसके साथ स्मॉल r की जगह क्या इंक्लूड हो जाता है, कैपिटल R इसमें इंक्लूड हो जाता है. तो दिस इज शोइंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हेन वी कंसीडर टू और मोर जीन्स एट ए टाइम. At the time of gamete formation, capital Y is independent of capital R, and similarly capital R is also independent of Y. So किसी भी combination पे यहाँ पर gamete में ये एक साथ आ जाते हैं. मे बी कैपिटल Y कैपिटल R के साथ प्रेजेंट हो, मे बी स्मॉल r के साथ प्रेजेंट हो. सिमिलरली स्मॉल y मे बी स्मॉल r के साथ प्रेजेंट हो, मे बी कैपिटल R के साथ प्रेजेंट हो. तो क्या शो कर रहे हैं ये, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ कैपिटल R इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल Y, एंड inheritance of capital Y is also independent of capital R. This is called the law of independent assortment. अब हम सेकेंड टर्म्स को क्लियर करते हैं, दैट इज लिंकेज. व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज? लिंकेज क्या है? लिंकेज के केस में हमने ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाए हैं, डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. द जीन्स प्रेजेंट ऑन देम, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b. What we are observing here,
that is genes are present on the same chromosome. So they are showing the linked behavior and we call them as linked genes. मीन्स वो लिंक्ड जीन्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी तो वो लिंक बिहेवियर शो करेंगे और ए बी के साथ जाएगा और स्मॉल बी के साथ जाएगा. दिस इज कॉल्ड लिंकेज. कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, देन दे शो द लिंक्ड बिहेवियर एंड वी कॉल देम लिंक्ड जीन्स. थर्ड टर्म हमारी क्या है? दैट इज रिकॉम्बिनेशन. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट क्रॉसिंग ओवर. Crossing over. What happened at the time of crossing over? Again we are forming the homologous pair of chromosome, that is showing with different color. Genes are present on them, capital A, capital B, small a, small b. What happened at the time of gamete formation? That is crossing over takes place. What is crossing over? At the time of crossing over, what happened? That is pairing of homologous pair of chromosome takes place. This is called crossing over और recombination. Recombination के टाइम पर क्या हुआ? That is pairing of homologous pair of chromosome takes place. The gene present here is the A, here is the B, here is the small a, here is the small b. When the crossing over is completed, what happens at the time of crossing over? Exchange of genetic material takes place. Genetic material का exchange होना ही क्या कहलाता है? Crossing over कहलाता है. तो इस exchange of genetic material के होने की वजह से crossing over के टाइम पर क्या होता है? New combination of genes arises. किस तरह से new combination of genes arise होंगे? एक कॉम्बिनेशन जो यहां पर अराइज होता है, इस पोर्शन पर क्या प्रेजेंट था? स्मॉल बी जीन्स प्रेजेंट थी. अब स्मॉल बी के साथ एक्सचेंज हुआ तो ए की जगह कैपिटल ए और कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आया. तो स्मॉल बी यहाँ पर स्मॉल ए के साथ कनेक्टेड है, बट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के साथ होने की वजह से बी के ऊपर जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने की वजह से बी के ऊपर जो है न्यू जीन आकर अटैच हो जाती है, दैट इज कैपिटल ए आकर अटैच हो जाता है. तो न्यू जीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है. सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पर? कैपिटल बी की जीन्स के साथ जो है क्या प्रेजेंट होता है आकर? दैट इज स्मॉल बी जीन्स आकर अटैच हो जाती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से. So new combination of genes arises because of the crossing over. If the genes are present on the same chromosome, अभी हमने पढ़ा they are showing the linked genes. तो linked gene होने की वजह से because genes are present on the same chromosome, क्या होगा? जो कॉम्बिनेशन गैमेट्स में होंगे वो पेरेंटल होने चाहिए. पेरेंटल की वजह से ये कॉम्बिनेशन अराइज होगा एक गैमेट के अंदर. दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा कॉम्बिनेशन अराइज होगा. दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या प्रेजेंट होगा? स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट होंगे. ये कॉम्बिनेशन तब अराइज होते हैं व्हेन द जीन्स शो लिंक्ड बिहेवियर, दे आर नोन एज द लिंक्ड जीन. बट जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो न्यू कॉम्बिनेशन अराइज होता है और न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से जो गैमेट यहाँ पर अपियर हो रहे हैं वो क्या अराइज होते हैं? वो ये न्यू जीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर अराइज होते हैं. तो किस पर डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर होगा या लिंक्ड जीन्स होंगे? तो क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज किस पर डिपेंड करता है? दैट इज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी. और दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. इट डिपेंड्स ऑन द distance between the
जीन्स, जीन डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि लिंकेज होने के चांसेस हैं या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं। तो अगर जीन डिस्टेंस बिटवीन द क्रोमोसोम between the genes present on the same chromosome, if the gene distance is very less, genes show linked behavior, so parental combination arise होंगे। बट अगर जीन डिस्टेंस ज़्यादा है तो जीन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे और न्यू रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो व्हाट वी लर्न हेयर दैट इज लिंकेज इज inversely proportional to distance between the genes. It means अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जीन्स के बीच में तो लिंकेज होने के चांसेस कम है, और अगर जीन डिस्टेंस बहुत कम है, जीन डिस्टेंस कम होने की वजह से जीन्स लिंक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो लिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वाइस वर्सा इन केस ऑफ अगर हम क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। What does it mean? If the gene distance is too much, then the frequency of crossing over is more and the recombinants produced in larger frequency. अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर वाई मेंडल नहीं, why Morgan selected Drosophila melanogaster as his experimental material। जैसे मेंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, उसी तरह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया। तो देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दिस। फर्स्ट रीजन, इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस like first we will take the eye color। eye color may be red, may be white। red is the dominant eye color and white is the recessive eye color। Second feature, that is body color। body color may be brown bodied or may be yellow bodied। Here brown is dominant and yellow is recessive। Next is the wing size। Next character is wing size। wing size में miniature body and large body। large is the dominant character and miniature is the recessive character। So large number of contrasting traits are present in Drosophila, that's why Morgan selected Drosophila as his experimental material। Next character जिसकी वजह से मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया, मेंडल नहीं मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे कुड बी ग्रोन ऑन ए simple synthetic medium
इन लैब्स सिर्फ अ पेयर ऑफ मैश्ड बनाना अगर हम लैब में सप्लाई कर देते हैं एज ए कल्चर मीडियम, तो उस पर भी हम ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट करेक्टर, they can complete their life cycle in 2 weeks. तो 2 वीक्स में ही हम प्रोजनी को डेवलप कर सकते हैं और रिजल्ट हमें अर्ली अवेलेबल हो जाएंगे. इट डज नॉट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. नेक्स्ट करेक्टर, a single mating may produce large number of progeny. A single mating may produce large number of progeny. One more character, we can easily distinguish between male and फीमेल फ्रूट फ्लाई. ड्रोसोफिला के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं फ्रूट फ्लाई. तो आसानी से हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मेल इज वेरी मच स्मॉलर इन साइज एंड फीमेल इज वेरी मच लार्जर इन साइज. यहाँ पर जो ड्रोसोफिला के केस में करेक्टर्स लिए जाते हैं, उन करेक्टर्स के क्या सिंबल्स किस तरह से हम ड्रोसोफिला के केस में लेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं. तो हम यहाँ पर सिंबल्स की बात कर रहे हैं. जैसे मेंडल ने टॉल के लिए कैपिटल टी लिया था, वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से हम लेते हैं. डोमिनेंट को हम वाइल्ड भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन के साथ. इसके अलावा जो नेमिंग करते हैं, जैसे मेंडल ने डोमिनेंट जीन की बेस पर नेमिंग की थी. जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी है, वो डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया था. बट यहाँ पर जो नेमिंग करते हैं, नेमिंग is done on the basis of recessive character. रिसेसिव करेक्टर की बेस पर नेमिंग करते हैं, ना कि डोमिनेंट करेक्टर की बेस पर नेमिंग होगा. जैसे ब्राउन बॉडी हमने पढ़ा अभी डोमिनेंट करेक्टर है और येलो बॉडी रिसेसिव करेक्टर है. तो येलो बॉडी की बेस पर हम स्मॉल वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये रिसेसिव करेक्टर को शो कर रहा है. और ब्राउन बॉडी को नाम देंगे रिसेसिव की बेस पर, दैट इज वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें हम प्लस साइन देंगे. ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से रेड आइड एंड वाइट आइड, तो वाइट आइड यहां पर रिसेसिव करेक्टर को शो करता है एंड रेड आइड डोमिनेंट करेक्टर को शो करता है. बट जब हम नेमिंग करेंगे तो वाइट आइड रिसेसिव करेक्टर की बेस पर करेंगे, W से रिप्रेजेंट होगा, और रेड आइड डोमिनेंट करेक्टर W से रिप्रेजेंट होगा विद प्लस साइन. तो इस तरह से यहाँ पर नेमिंग की जाती है, जो कि अभी हम आगे क्रॉस ब्रीड करेंगे लिंकेज के लिए. किस तरह से लिंकेज के क्या रिजल्ट्स रहते हैं जब लिंक जीन शो होती है, तो उसमें हमें ये सिंबल्स और नेमिंग किस तरह से करनी है ये हमें क्लियर होनी चाहिए. I think this is very much clear to you all about next concept of linkage we discuss in our next video. Thank you so much.